Good morning to everyone. Today we study about relation. Before this lecture, I will give two lecture about relation, definitions and some examples will explained by me in last my two lectures. Today we solve exercise 1.1 of chapter 1, relation and function, exercise 1.1. First we take question number 1. Question is, determine whether following relations are reflexive, symmetric and transitive. There is first part, relation r equal to x, y, 3x minus y equal to 0 for the set A. यानी हमें रिलेशन दिया हुआ है 3x minus y equal to 0 और x, y है, ऑर्डर पेयर x, y है, फर्स्ट एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट है y है, दोनों ही एलिमेंट है वो हमारे पास सेट A से लिए हुए हैं. Let 3x minus y equal to 0, we can write as y equal to 3x. If x equal to 1, then y equal to 3 into 1 equal to 3, and x equal to 2, y equal to 3 into 2 equal to 6. If x equal to 3, then y equal to 3 into 3 equal to 9. If x equal to 4, then y equal to 3 into 4 equal to 12. Thus we get relation R equal to 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. If we take x equal to 5, then y equal to 3 into 5 equal to 15, not belong to set A, therefore x, 50 not belong to R, and for this element 5, after 5, 6, 7, 8, no other elements, no other order pair within set within R. Therefore R equal to only 4 order pairs, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. Now we have to take this relation R is reflexive, symmetric or transitive. First for reflexive, let reflexive. For reflexive, we see that 1, 1 not belong to R. Similarly 2, 2 not belong to R, 3, 3 not belong to R. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका खुद से रिलेशन हो और वो रिलेशन R में आ रहा हो. Therefore R is not reflexive. R is not reflexive. For symmetric, we see that 1, 3 belong to R. 1, 3 belong to R, but 3, 1 not belong to R. 1, 3 सेट R के अंदर है लेकिन 3, 1 नहीं है. Therefore R is not symmetric. R is not symmetric. Now check for transitive. We see that 1, 3 and 3, 9. 1, 3 and 3, 9 belong to R, but 1, 9 not belong to R. 1, 9 इसमें नहीं आ रहा है, not belong to R. Therefore R is not transitive. यानी जो रिलेशन R है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. Write down this. This is very good example for understanding equivalence relation, reflexive, symmetric and transitive. Please note down this. 2. Now we take second part. Second part is given as relation are in the set n of natural number. Relation are in the set n. Set n में relation R डिफाइन किया गया है. Relation R equal to x, y, y equal to x plus 5, y equal to x plus 5 and x is less than 4.
x is less than 4 and x is natural number, then we take x equal to 1, 2 and 3. If x equal to 1, then y equal to 6. If x equal to 2, then y equal to 7. If x equal to 3, then y equal to 8. Therefore, we have relation r equal to 1, 6, 2, 7 and 3, 8. Now we check this is reflexive or not. For reflexive, we see that 1, 1 not belong to R, 2, 2 not belong to R, 3, 3 not belong to R. Therefore, R is not reflexive. R is not reflexive. And next, symmetric. We see that 1, 6 belong to R, but 6, 1 not belong to R. Therefore, R is not symmetric. R is not symmetric. For transitive, this relation is transitive or not. We have to check this is transitive or not. For this, we see that 1, 6 belong to R, but there is no other element with 6 for 6 as 6 first element. For the transitive, we know that if A, B belong to R and B, C belong to R, then A, C belong to R compulsory है. But there is 1, 6 belong to R, 6 है, 1, 6 है, but 6, something नहीं है. यानी 6 का किसी और एलिमेंट से रिलेशन नहीं है. 2, 7 है, 7 का किसी और से नहीं है. 3, 8 है, 8 का किसी और से नहीं है. तो 8 इज फर्स्ट एलिमेंट किसी 6, 7 and 8 एलिमेंट से किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट के पेयर के रूप में नहीं आ रहा है. Therefore, this relation is transitive. Since if AB belong to R and BC belong to R, then it is compulsory. Then it is compulsory A, C belong to R. But there is 1, 6 है and 6, something नहीं है. 6, 7 और 8 फर्स्ट एलिमेंट किसी भी एलिमेंट्स में नहीं आ रहा है. Therefore, this relation is transitive. This is transitive. यानी we can say 1, 6 belong to R, 1, 6, 2, 7, 3, 8 belong to R, but there is no other element, there is no edge order pair in which 6, 7, 8 as first element. Therefore, this relation is transitive. Therefore, we can say this relation is not reflexive, not symmetric, but transitive. Now we take next part number 3. In this part, R is a relation in set A equal to 1, 3, 4, 5, 6, R equal to x, y is divisible by x. एग्जाम्पल मतलब पार्ट नंबर 3 जो है इसमें रिलेशन आर डिफाइन किया गया है इन सेट अब इसमें हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. रिलेशन आर इक्वल टू x, y इज डिविजिबल बाय x, y इज divisible by x, y is divisible by x. For this, we prepare a relation can satisfy the condition y divisible by x. y divisible by x होना चाहिए. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो हम लिख सकते हैं इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6. तो हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट से वो खुद से डिविजिबल होता है. तो ये सभी एलिमेंट्स आएंगे. 1 रिलेशन 2 हो सकता है क्योंकि 1 का 2 में भी डिवाइड हो रहा है, 1 का 3 में डिवाइड हो रहा है, 1 का 4 में डिवाइड हो रहा है, 1 का 5 में भी होगा और 1 का 6 में भी होगा. सिमिलरली फॉर 2 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 2 डिविजिबल बाय itself. वो एलिमेंट्स हम पहले ही लिख चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट 3 का रिलेशन 3 से हम लिख चुके हैं. 3 का 6 से डिविजिबल हो गया.
4 का 4 से डिविजिबल होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स इसमें है नहीं। इसी तरीके से 5 का 5 से डिविजिबल होगा, हमने पहले लिख दिया, और 6 का सिर्फ 6 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर ऑल दीज ऑर्डर पेयर इंक्लूड्स इन सेट आर। सेट आर के अंदर ये सभी ऑर्डर पेयर आएंगे। नाउ वी हैव टू चेक दिस फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट वी चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। We see that 1,1 belong to R, 2,2 belong to R, 3,3 belong to R, 4,4 belong to R, and 5,5, 6,6 सब एलिमेंट्स हैं जिनका खुद से रिलेशन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं for every x belong to set A, x, x belong to R, therefore R is reflexive। प्रत्येक एलिमेंट से वो खुद से डिविजिबल होता है। इसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग टू आर है बट 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेट x, y बिलोंग टू सेट A, x, y बिलोंग टू R, x, y बिलोंग टू R, दिस implies x is divisible by y is divisible by x, y is divisible by x. This implies x is not divisible by y, not divisible by y. Since x divisible by y है and then y divisible by x तभी possible है if x equal to y. For x not equal to y, for x not equal to y, therefore y comma x not belong to R, therefore R is not symmetric। R जो है रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Now we check for transitive। Now we check for transitive। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं हम आगे। इसमें देखिए 1,1 बिलोंग टू आर है, 2,2, 3,3 डिफरेंट एलिमेंट्स देखना है। 1,2 बिलोंग टू आर है, देन 2,4 बिलोंग टू आर है, तो 1 का 4 से रिलेशन आ रहा है। सिमिलरली 1 का 3 से है और 3 का किससे, 6 से है, तो 1 का 6 से आ रहा है। इसी तरीके से 1 का 4 से है, 4 का रिलेशन 4 से है, तो 1 का 4 से हो गया। एंड 1 का 5 से, 5 का आगे 5 से है, तो 1 का 5 से रिलेशन इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिसमें ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी के बाद ए रिलेशन सी नहीं आ रहा हो। इसको हम इस मतलब नॉर्मल जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट x, y, z बिलोंग टू सेट ए। इफ x, y बिलोंग टू R and y, z belong to R, this implies y divisible by x, y divisible by x and z divisible by y। इसका मीनिंग क्या हो गया कि y से हम x में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, y अपॉन x जो है हमारे पास मान लीजिए k आ रहा है। k इंटीजर है, y में x का पूरा पूरा भाग जा रहा है। सिमिलरली z में अगर हम y का भाग देते हैं, z डिवाइड बाय डिविजिबल बाय y, z डिविजिबल बाय y, दैट इज y, प्लीज नोट दिस, z इज डिविजिबल बाय y, y अपॉन z है, वो भी एक इंटीजर है। यहाँ टेक दिस इंटीजर इज n, वी कैन राइट एज y अपॉन x into z upon y कैंसिल बाय y, देन इक्वल टू k क्रॉस n। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई वो इंटीजर ही होगा, यानी z डिवाइड बाय x हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है। देन वी कैन से दैट z इज डिविजिबल बाय x। देन वी कैन से z x, z belong to R, x, z belong to R, therefore R is transitive। We see have this relation is reflexive
and transitive but not symmetric. Please note down this. This is very important example. Please note down this. Now students, take fourth part of the question number 1. There is this relation defined in integers from z to z. Relation R is given as r equal to x comma y. X minus y is an integer. X minus y है वो integer है. First we check for reflexive. First we check for reflexive. We know that x minus x equal to 0 is integer. Therefore x comma x belong to R. Therefore relation R is reflexive. For symmetric, let x comma y belong to z, x y belong to R. This implies x minus y is an integer. We know that if x minus y is integer, then y minus x is also an integer. Y minus x is an integer. And this implies y comma x belong to R. Therefore relation R is symmetric. For transitive, let x, y, z belong to z. This relation defined in set z. Let x comma y and y comma z belong to R. This implies x minus y is integer and y minus z is also integer. Now sum of two integers is also an integer. दो इंटीजर्स का सम या डिफरेंस है वो भी इंटीजर ही होगा. Therefore we add x minus y plus y minus z is integer. Y cancel by y. This implies x minus z is integer. Therefore we can say x comma z belong to R. X comma z belong to R. Therefore relation R is transitive. So we see here relation R is reflexive, symmetric and transitive, and this relation is an equivalence relation. X and y जो है इसके अंदर इंटीजर्स है. नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है एंड जीरो भी है. दो सेम नंबर का जो डिफरेंस है वो जीरो है, वो इंटीजर होगा. फिर दो इंटीजर्स का डिफरेंस अगर इंटीजर है x माइनस वाई इंटीजर तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा. इसी तरीके से मैंने आगे इसमें ट्रांजिटिव में बता दिया है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. प्लीज नोट डाउन दिस. Now we take part 5 for question number 1. There is given set A is set of human being, यानी set A persons का set है और जो relation define किया गया set A से A में define है. There are 5 parts in this question. First we take part first. R equal to x, y, x and y work at same place. We check this is reflexive, symmetric and transitive. X and y work एट सेम प्लेस, यानी x एंड y है वो दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं. यानी x एंड y मान लीजिए हमारे पास दो पर्सन हो गए राम एंड श्याम. राम एंड श्याम जो है एक ही जगह काम कर रहे हैं. तो हम इसमें लिख सकते हैं x, x बिलोंग टू R. सिंस कोई पर्सन है सेम जगह काम कर रहा है
तो एक्स का एक्स से रिलेशन है, एक्स एक्स सेम जगह काम कर रहा है, एक्स को एक्स बिलोंग टू आर, तो रिलेशन आ रहा है और रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली इफ राम एंड श्याम मान लीजिए एक ही सिटी में काम कर रहे हैं, दोनों एक ही सिटी दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो श्याम एंड राम भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, वी कैन से राम एंड श्याम भी बोल सकते हैं, श्याम एंड राम भी बोल सकते हैं। यानी x, y, if x, y belong to R, then we can say y, x belong to R, therefore relation R is symmetric. Relation R is reflexive and symmetric. Similarly, if let three persons Ram, Shyam and Mohan, if Ram and Shyam x, y belong to R है, यानी x, y राम और श्याम एक जगह काम कर रहे हैं, श्याम और राम दोनों, यानी राम और श्याम दिल्ली में काम कर रहे हैं और श्याम और मोहन दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि राम और मोहन दोनों एक जगह दिल्ली में काम कर सकते हैं। यानी x, y बिलोंग टू आर है, y, z बिलोंग टू आर है, देन वी कैन से x, z बिलोंग टू आर, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ फॉर सेकंड पार्ट, x and y live in same locality, सेम पार्ट है ये, जो पार्ट 1 है उसी तरीके से दोनों एक ही जगह रहते हैं, x x सेम जगह हो गया, x y सेम जगह, तो y x सेम जगह बोल सकते हैं हम। और इसी तरीके से जो है श्याम राम और श्याम एक जगह है, श्याम और मोहन एक जगह है, हम कह सकते हैं कि राम और मोहन एक जगह है, यानी ये भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम लेते हैं पार्ट 3, पार्ट सी, पार्ट 5 का सी के अंदर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मान लीजिए देखना है, तो ये देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन y, यानी x क्या खुद से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, नहीं हो सकता, x, x नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली वी कैन से x, y बिलोंग टू आर, यानी x जो है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, देन y है वो x से 7 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी x, y बिलोंग टू आर है, बट y, x नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि x जो है y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, और ट्रांजिटिव के लिए हम इसमें क्या बताएंगे, ट्रांजिटिव में देखिए x, y बिलोंग टू आर, यानी x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, y z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, देन x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, x इज 14 सेंटीमीटर लॉन्गर देन z। इसका मतलब क्या हुआ कि x, z नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन है हमारे पास x exactly 7 centimeter longer than y, this is not reflexive, not symmetric and not transitive. Similarly for next part, x is wife of y, there is x is wife of y, तो x, x not belong to r, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, डी पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, कोई भी पर्सन है खुद का वाइफ नहीं हो सकता, therefore x, x not belong to r, रिलेशन r है वो क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में x रिलेशन y, x, y बिलोंग टू r आएगा, इसका मतलब x है वाइफ ऑफ y हो गया, बट y इज हस्बैंड ऑफ x, y इज नॉट बिलोंग टू r, x, y बिलोंग टू r इसमें है, बट y, x नॉट बिलोंग टू r, सिंस y इज हस्बैंड ऑफ x, y इज हस्बैंड ऑफ x। फॉर ट्रांजिटिव, x इज वाइफ ऑफ y, then y is not possible to wife of z, यानी हम 3 पर्सन लेते हैं, अगर ये जो सेट है हमारे पास ह्यूमन बीइंग का है, इसमें मेल फीमेल सभी है, हमने ये मान लिया कि जो सेट A है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स x, y एंड z, अदर्स एलिमेंट्स से सभी पर्सन्स है, x इज वाइफ ऑफ y, यानी x इज वाइफ ऑफ, अब हम y को है z का वाइफ नहीं ले सकते, यानी x, y बिलोंग टू r है, but y, z not belong to r, therefore this is not compulsory that x belong to z, therefore this relation is transitive, we can say this relation is transitive। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, अगर a, b बिलोंग टू r है और b, c बिलोंग टू r है, देन a, c बिलोंग टू r होना चाहिए। इसमें a, b बिलोंग टू r है, बट b, c बिलोंग टू r, यानी y बिलोंग टू z है ही नहीं, y रिलेशन y, z बिलोंग टू r नहीं है, इसलिए z बिलोंग टू r होना कंपल्सरी नहीं है, therefore this relation is not
ट्रांजिटिव। नाउ लास्ट पार्ट है, फॉर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x इज फादर ऑफ y। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पर्सन है खुद का फादर नहीं होगा। x इज फादर ऑफ y, देन y इज सन ऑफ x हो जाएगा, देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, देन x इज नॉट फादर ऑफ z, यानी x है, x इज फादर ऑफ y, x y का फादर है और y जो है वो z का क्या है, फादर है। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, यानी x कोमा z नॉट बिलोंग टू r होगा, x कोमा z नॉट बिलोंग टू r होगा, यानी ये रिलेशन है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो we can say this relation is not reflexive, not symmetric and not transitive. So you can complete these questions. I explain these questions very fastly because this is very simple question and you can complete this easily. Question number 2 I explained in my last lecture. Question 3 and 4 are simple, you can solve this question easily. Now we take question number 5 of exercise this. Question 5 is relation R is defined in set of real numbers R to R. Relation R is defined set of real numbers R to R. R equal to A comma B. A is less than equal to BQ. A is less than equal to BQ. A comma B belong to R है। तो फर्स्ट वी प्रूव फॉर चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, इसमें देखिए R जो है A एंड B आर रियल नंबर्स, यानी ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है। लेट A इक्वल टू 1/2, देन 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। This implies 1/2 is less than equal to 1/8, not true. ये true नहीं है, therefore 1/2, 1/2 not belong to R, therefore R is not reflexive. R is not reflexive. R relation जो है वो reflexive relation नहीं है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होता है उसके लिए हमें जनरल प्रूफ करना होता है, लेकिन अगर हमें कोई भी ऐसा एग्जांपल मिल जाता है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। अब रियल नंबर्स में हमें ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाएगा जिसके लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा एक एग्जांपल काफ़ी होता है इसको प्रूफ करने के लिए कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है वो नहीं है। अब फिर नाउ वी चेक फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक लेट 1, 2 belong to R, 1 और 2 रियल नंबर्स हैं, A equal to 1 and B equal to 2, 1, 2 belong to R, meaning 1 is less than equal to 2 क्यूब, यानी 1 जो है 8 से कम है, ये ट्रू है, बट 2, 1 not belong to R, since but 2, 1 not belong to R, since 2 is less than equal to 1 cube, not true. 2 is less than equal to 1 cube, true नहीं है, 2 है वो 1 के क्यूब से कम नहीं होगा क्योंकि 1 का क्यूब है वो 1 ही होगा, therefore R is not symmetric. रिलेशन R है वो सिमेट्रिक नहीं है। Now we check for transitive. For transitive, let A, B and C value of A. Let अब हमें इसमें देखना है कि A, B और C की वैल्यू कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए जो है ये रिलेशन है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। A, B और C की वो कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम मान लीजिए A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 3/2 है और C की वैल्यू हम मान लिए 6/5 है। कोई वैल्यू तुम ले सकते हो, इसमें ऐसी वैल्यूज देखना है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वी सी दैट A, B belong to R,
A, B belong to R, since 3 इसमें A, B belong to R यानी 3,3/2 belong to R है। क्यों है देखिए, since 3 is less than equal to 3/2 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना है 27 और 2 का क्यूब कितना है 8। हमें पता है कि A is less than equal to B क्यूब। 3 जो है 27/8 से कम है, 27 में 8 का डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है। सिमिलरली B, C बिलोंग टू R देखना है, यानी हमें देखना है 3/2, 6/5 बिलोंग टू R है या नहीं है। इसके लिए हमने देखा कि 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना आएगा 216 एंड 5 का क्यूब है 125। वी शेयर इजीली 216 and 216 divided by 125. It is clear that 216 divided by 125 we get value greater than 1.5 and 3/2 यानी 1.5 it is true. तो we say है 3,3/2 belong to R, 3/2, 3/6/5 also belong to R. Now we check 3,6/5 belong to R. It is true or not. For this 3,3/2, 3,6/5 इसको चेक करने के लिए हमने लिखा 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। 6/5 का क्यूब मैंने बताया 216 डिवाइड बाय 125 आ रहा है, इट्स वैल्यू इज लेस देन 2 बट इट इज नॉट ग्रेटर देन 3, यानी 2 से भी कम है तो 3 से ज़्यादा कैसे होगी, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देयरफॉर 3,6/5 not belong to R, therefore R is not transitive. इसके और भी एग्जाम्पल तुम्हें सोचने हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, इसमें मैंने A की वैल्यू जो है 3 ली है, B के 3/2 और C के 6/5 वैल्यू लेके मैंने बता दिया रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। हमें कोई भी रियल और भी हम रियल वैल्यूज और रियल वैल्यू हम इसमें देख सकते हैं। तो मैं सर्च करेंगे कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। Thus we so that this relation is not reflexive, not symmetric and not transitive. Please note down this. Today we solve many of the questions of exercise 1.1. Remaining question you can try yourself. If you solve any problem in this, then you can write in comments. Thank you for attending the class. बाकी जो मैंने जो क्लासें हमारी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम पहले के 2 लेक्चर है वो भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।